मिसिस वीणा विलास गवस जो कि बी विंग 302 नंबर में रहती है, मिसिस वनिता अभिषेक नायर ए विंग 101 नंबर में रहते हैं, अनिल जवाहरलाल रैना सी विंग 003 में, ये हमारे सेक्रेटरी हैं हमारे सोसाइटी के, जो कि ऐसा गुंडागर्दी का मारामारी का काम करते हैं। तो ये सारे जन जिनका नाम मैंने बताया वो विटनेस बने हुए हैं FIR नंबर 0678 में, और जिनका चार्जशीट नंबर है SCC 2089/2021 8 फरवरी 2021। However, all the witnesses are the accused in my FIR 0426, चार्जशीट नंबर 2328/2020, 14 दिसंबर 2020 को ये कोर्ट में चार्जशीट जमा हो चुका है। So at that point in time there were no ladies walking inside the ground of the society garden, and so I say that the allegation is false and void since there were no ladies inside the ground of the society garden at the given time। 7:30 बजे तो कोई था ही नहीं, और मैं खुद ही 8:04 पे बाहर निकला, उस टाइम पे भी कोई नहीं था। और आरोप किसने डाला? मनीषा बेन ने, और ये 4 लेडीज़ को विटनेस बना डाला है। ठीक है, since there were no ladies inside the ground of the society gardens, hence sitting beside them is a false allegation again। जब मनीषा बेन सोसाइटी के गार्डन में थी ही नहीं तो फिर उनके पीछे पीछे घूमने का सवाल ही नहीं है, तो फिर ये जो एलिगेशन डाले हैं वो कम्प्लीटली फॉल्स है। Still, if they argue on it, then please provide the CCTV footage of the incident, as society CCTV cameras are already installed in our society premises, focusing the movement of the people in the society. If the society secretary and chairman is not able to produce the CCTV footage of the above allegations, then society managing committee is doing fraud by keeping the members in darkness by taking the maintenance bill amount which include maintenance of CCTV cameras of the society. Please provide the footage from the society if your complaint is too concrete। अगर आपकी कंप्लेंट में दम है तो सोसाइटी से कहिए कि उस दिन की घटना का CCTV फुटेज निकालें, वो तो सोसाइटी के प्रीमाइसेस में लगे हुए हैं। बाद में कंप्लेनर बोलती है मनीषा बेन, it is mentioned that in the evening 7:30 बजे even the complainant was roaming around with other ladies। I was taking video shooting of all of them in the society garden, and when she asked me as in why I am taking video shooting of others, I pushed her on her chest and hit her by leg, and she fell down and other ladies had lifted her, and then she complained at Kashimira police station। It is mentioned that I harassed the ladies of the society and I stopped them and use slang and abusive language to them, and I flirt with them by sitting beside them, and because of all the above issues, society ladies hereby complain against him at Kashimira police station। तो इस तरीके से पूरी खिचड़ी पकाई है कि 7:30 बजे मैं वो सोसाइटी के गार्डन में घूम रही थी, मैं उनके पीछे पीछे घूम रहा था, वीडियो शूटिंग ले रहा था, और बाद में मैंने उसको पुश किया, उसकी चेस्ट पे मैंने हिट किया पैर से, वो गिर गई, फिर बाद में 4 लेडीज़ ने उसको उठाया, फिर बाद में उन्होंने काशीमेरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया, पूरी खिचड़ी पकाई, जिसका रिप्लाई देते हुए the above allegations by the complainant on me, like me taking video shooting of all the ladies in the society garden, is absolutely false, and society CCTV cameras are already installed in the society premises and has focus of the garden view as well. Please provide the CCTV footage from the society for abusive language and flirt with them and sit beside them.
These allegations are absolutely false, as if I flirt with so many ladies. And then, how, if I flirt with so many ladies, then how can I abuse them or use slang language to them? If I sit beside them, then they can ask me to sit somewhere else. As society garden are not their private premises, still they can provide CCTV footage from the society, then the complaint would be more transparent. ठीक है. बाद में कंप्लेनर बोलती है, इट इज़ मेंशन्ड दैट इन जून 2020 when I had an argument with the society secretary and chairman of the society, she and other ladies of the society were roaming in the society garden and I started video shooting behind them. And when she asked me, why are you doing video shooting behind us? At that time I pushed her on her chest and she was very shy, and then I hit her with leg, and then I abused her and other ladies, and she filed a police complaint against me. जिसका रिप्लाई ऑलरेडी मैंने दे चुका हूँ. तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट इसका रिप्लाई देते हुए, I haven't had any argument with the society secretary or chairman of the society. If there is, then please specify the subject matter. On 10 June 2020, a major incident took place with me wherein society committee member, including ladies and other lady member and tenant, attacked me, and for which I have already filed an FIR at Kashimira police station on 11 June 2020, Thursday. The instance mentioned me taking the video shooting of her and other society ladies while roaming in the garden of the society is absolutely false and baseless. Then I pushed on her chest and she was very shy, and then I hit her with a leg, and I abused her and other ladies, and she filed a police complaint against me. The above lines are repetitive, and this shows clear intention of the complainant and other ladies taking support of the society secretary and chairman to defame me and making false FIR complaint, FIR 0678 at Kashimira police station, to defend themselves by my FIR 0426. I would like to submit the CCTV footage camera 1 and 2 for the investigation purpose to the investigation officer for my defense, wherein this false FIR 0678 can be dismissed. ठीक है. अब मैं आपको उसका वीडियो बता देता हूँ कि मनीषा बेन एक्चुअली में कितने बजे अपने घर से बाहर निकलती है. आइए देखते हैं. ठीक है. 7:23 और 55 सेकेंड्स पे वो अपने घर से बाहर निकल रही है. चलिए देखते हैं. तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने अपने लैपटॉप में लगाया हुआ है. ये मेरे एंट्रेंस डोर के बाहर CCTV कैमरा लगाया हुआ है. 10 जून 2020 7:26 और 27-30 सेकेंड हो रहे हैं. चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. ये देखिए मनीषा बेन 7 बज के, ये देखिए कितने बजे अपने घर से बाहर निकल रही है. सात बज के 22 और 38 सेकेंड 39. यहाँ पे मैं रहता हूँ शेखर घोरडिया, ई विंग 203 नंबर में, और यहाँ पे मनीषा बेन रहती है रानौलिया. ये मेन एंट्रेंस डोर के बाहर का पैसेज है. सीढ़ियाँ दिख रही हैं.
जी, अभी 7:24 करीब करीब पे मनीषा बेन नीचे उतरी। ठीक है, अब वो 7:43 और 40 सेकेंड पे शाम को वो ये पीएम को वापस आ रही हैं। तो देखिए, मैं तो अभी बाहर निकला ही नहीं हूँ। अब हम लोग वेट करते हैं 7:43 और 40 सेकेंड्स पे कि मैं बाहर निकल रहा हूँ या नहीं निकल रहा हूँ। हम लोग चेक करते हैं। मैं अपने घर के अंदर ही हूँ। ये 202 नंबर वाले हैं जो अभी दरवाज़ा खोला, वो भाड़ोत्री थे। कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं जा रहा है।
अब 7 बजकर 43 मिनट्स पर और 40 सेकंड पर मनीषा बेन वापिस आ रही है और अपने घर के दरवाजे के अंदर जा रही है। तो आपने देखा कि 20 मिनट के अंतराल में मैंने मनीषा बेन के पीछे नीचे जाते हुए कोई कदम नहीं रखा है। अब ये मनीषा बेन आ रही है, ये देखिए, और सीधा अपने घर के अंदर जा रही है। तो आपने देख लिया कि भाई 7:30 बजे का टाइमिंग दिया था उन्होंने कि भाई मैंने उनके साथ गार्डन में छेड़खानी की। हालांकि मैं तो अपने घर के बाहर निकला ही नहीं हूँ। 7:30 की जगह पे हम लोग, मैंने आपको टू बी वेरी प्रिसाइज 7:23 और 58 सेकेंड्स या 55 सेकेंड्स पे मैंने बताया आपको कि मनीषा बेन अपने घर के बाहर जा रही है और 20 मिनट के अंतराल में वो वापस अपने घर चली भी जाती है। तो मैंने छेड़खानी नहीं की, ये प्रूव हो जाता है। अब मैंने 8:04 पे अपने घर के बाहर पांव रखा सोसाइटी के गार्डन में जाके वॉकिंग करने के लिए और फ्रेश होने के लिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी तो मनीषा बेन घर के अंदर ही है। आपको 15 मिनट 20 मिनट और वेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि 8:04 पे मैं घर के बाहर निकल रहा हूँ। तब तक मनीषा बेन अपने घर में है और मैं भी अपने घर में हूँ, मैं बाहर नहीं निकला हूँ।
अब देखिए 8:04 और 40 सेकंड पे मैं अपने घर के बाहर निकला, 10 जून 2020 बुधवार की शाम को। अभी भी मनीषा बेन तो आपके अपने घर के अंदर ही है। अभी वो बाहर निकलेंगी 8:11 और 27 सेकंड पे, आप देख सकते हैं।
ये मनीषा बेन का बेटा नीचे गया, भगदड़ मच गई है क्योंकि मुझे नीचे सब मार रहे हैं। कार्तिकीय कॉम्प्लेक्स के सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स, अनीता हटांकर, ज्योत्सनाबेन दलवी और दूसरे। अभी मनीषा बेन 8:11 और 28 पे नीचे जा रहे हैं। अब ये नीचे उतर के कर क्या रहे हैं? वो मुझे मार रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वो मुझे नीचे जाके मार कैसे रहे हैं, वो हम लोग देखते हैं। 8:11 और 28 पे वो सब जन नीचे गए। आइए।
तो हमने अभी अभी देखा कि 8:11 और 28 पे मनीषा बेन अपने घर से नीचे गई। तो नीचे जाके वो क्या कर रही है, आइए देखते हैं। यहाँ पे 8:04 पे मैं नीचे उतरा, तो मैं ये देखो यहाँ पे दिखाई दूंगा। ये देखिए मैं गार्डन की तरफ गया, राइट साइड। आपने यहाँ पे देखा कि मैं यहाँ से गार्डन की तरफ राइट साइड में गया, बाहर नहीं गया हूँ। एंट्रेंस डोर, ये जो एंट्रेंस डोर है वहाँ से मैं बाहर नहीं गया हूँ, गार्डन की तरफ गया मैं। अब 8:00 अभी 8:11। अभी ये ऊपर से फर्स्ट फ्लोर वाली ज्योत्सनाबेन दलवी को ये अनीता हटांकर ने नीचे बुलाया मुझे मारने के लिए। सिक्योरिटी वॉचमैन देख रहा है। अब मैं आया यहाँ पे, अब यहाँ पे ये है विलास गवस, उसके बाजू में मिस्टर जयराम दलवी। अब मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन जाने नहीं दे रहे हैं। अब देखिए ये मनीषा बेन आ चुकी है नीचे, वाइट टी शर्ट में, आप देख सकते हैं। 8:12। यहाँ पे ज्योत्सनाबेन दलवी मुझसे बात कर रही है, मनीषा बेन, अनीता हटांकर, ये सब जन मुझे मार रहे हैं घेर के। मैंने बोला लेडीज लोग हट जाओ, ऊपर सीसीटीवी कैमरा है, सब कैमरा के अंदर कैद हो जाएगा। ये देखिए मुझे मारना शुरू किया। मिसेस ज्योत्सनाबेन दलवी ने पीछे से कवर करती हुई मिसेस अनीता हटांकर। देखिए मुझे यहाँ पे गिरा के सब जन ने, मनीषा बेन तो मुझे मार रही है। ये देखिए नीचे 8:13 और 2 सेकंड 3 सेकंड। ये देखिए आप सब जन, उसमें अनिल रैना भी है। ये देखिए, तो जब ये खुद नीचे उतर के डायरेक्टली मुझे मार रही है तो फिर मैं गार्डन में तो थी नहीं, सीधी नीचे उतर के उसने मुझे मारा है। तो ये झूठा एलिगेशन